And indeed, a very convincing win there for Australia against Sri Lanka. And if there was any doubt, as you heard, against South Africa, I think that's gone to rest. And everything that we spoke about before the game, well, a lot has changed in these last 20 overs each side. Here we are. I'm Fakhri Alam. You are watching The Pavilion. This is A Sports and 10 Sports, our special transmission for the ICC Men's T20 World Cup. And in The Pavilion, with me, Pakistani legends, superstars, Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah ul Haq, and Wahab Riaz. Well, gentlemen, here it is. This is how it went down at the Dubai International Stadium. Let's take a look at the scorecard. This is how the match summary is. Sri Lanka were put into bat first. They had an outstandingly great start, but then something went wrong. Zampa hit them. 12 runs in 4 overs for 2 wickets. And Stark also joining the party with that fantastic Yorker. And it kind of put a brakes on Sri Lanka. At one point, it looked they'd probably get 170, 175. And had they gotten 170, 175, we would probably have had a great game on our hands. Australia coming back, and Warner Finch factor. Today, that factor had returned. Both Warner and Finch completely demolished in the power play the entire Sri Lankan bowling. And then Smith coming in to finish it up with Stoinis. This is how it's gone. Australia win by 7 wickets. Second win in their Super 12. Oh, wow. And that's how it is. Well, gentlemen, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया. जो ओपनर है वसीम, जिनके हम लोग बार-बार बात कर रहे थे कि जी वार्नर ऑफ कलर हैं और ये है वो है, उन्होंने तो आके आज जो है हथौड़े चला दिए सब पे. He's back. He's back. He's back with the bang. Absolutely. हम सब कह रहे थे कि क्वालिटी प्लेयर है. इस फॉर्मेट में एक इनिंग्स चाहिए होती है और वो उसको मिल गई है. अब यहाँ से वो सिर्फ बेहतर ही होगा और आई थिंक बाकी टीमों के लिए खतरा भी होगा जिस तरीके से वो बैटिंग करता है. एंड कमिंग बैक टू श्रीलंका, दे स्टार्टेड ऑफ वेल. दे स्कोर्ड 63 आई थिंक इन फर्स्ट 6 ओवर, द हाईएस्ट इन दिस टूर्नामेंट सो फार. और उसके बाद कामाकाजी ठूस कोई प्लानिंग नजर नहीं आई. आई कैन इमेजिन श्रीलंका लुक्ड गुड बट अनफॉर्चुनेटली उसने बड़ी ज़बरदस्त शॉट मारी. स्वीप जो सीधा उसके पास चली गई स्क्वायर लेग पे, कैच हो गया. एंड देन आई सपोज everybody bowled well. I thought they'll get to 170 the way they started. 175. हम सबका ये ख्याल था, मगर T20 में विकेट लेते जाओगे तो दूसरी टीम का स्कोर कम होता जाएगा. आपका जो भी ख्याल था वो इन पर्चियों में बंद है मेरे सामने. ये मैंने रखी हुई है. मेरा ख्याल वो खराब करने लगे थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, वसीम भाई की इज्जत रखनी है. उनका जो टोटल है उसके अंदर अंदर ही आउट होना. अरे वाह, हो गया. अभी थोड़ी देर बाद ये पर्चियां खोलते हैं, देखते हैं किसने क्या टोटल जो है वो क्या है. वकार, you must be very happy. The Aussies won. Yeah, kind of. So now, Waqar, when you go back in the room, you should have a shrimps and a barbie. Yeah, mate. Yeah, I mean, they shown their true colors today, actually, to be honest. क्योंकि जिस तरीके से कहले वसीम भाई भी यही कह रहे थे कि आज ऐसा लगा है जैसे the old Australian वार्नर को किसी भी बॉलर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. I mean, हम सोरेस यही बोल रहे थे कि इस पिच पे जब थोड़ा सा गेंद पुराना हो जाता है तो मुश्किलात होती हैं, स्पिनर्स खेले नहीं जाते. बट आज ऐसा कुछ भी नहीं था. ऑल्दो देयर वाज अ लिटिल बिट फॉर द स्पिनर्स, बॉल कोई नीचे रह रहा था, बट ही स्टेज सो लो. वॉच इट देयर, जितनी भी शॉटें मारता स्पेशली स्पिनर्स को, ही स्टेज सो लो एंड ही मेक श्योर्स ही यूजेस हिज क्रीज. समटाइम ही डज प्ले अक्रॉस द लाइन, बट यू नो व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग, जब वो अपनी अच्छी फॉर्म में होता है, जब उसके बल्ले में गेंद लग रहा होता है, तो ही इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर. It's totally looked like that completely. Misbah, you must be really happy to see that innings and a little worried for Pakistan if at any stage we cross our path with Australia in this World Cup. डिफरेंट टीम होगी ज़ाहिर है पाकिस्तान उनके लिए, बट सेमीफाइनल्स में कहीं जाके अगर आएगी ऑस्ट्रेलिया. बट ऑस्ट्रेलिया ने आज दिखाया है सबको कि दे आर बैक. नाउ दे आर अ थ्रेट टू एनी अदर टीम. सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से वो खेले हैं, जो नॉर्मली ऑस्ट्रेलियंस करते हैं बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट्स में, वो पॉजिटिव जो उनकी एक अप्रोच है कि आके नो मैटर हु इज़ बॉलिंग, और जिन बॉलरों से उनको थोड़ा सा ख़तरा था उन्होंने उनको सेटल डाउन ही नहीं होने दिया. दोनों स्पिनर्स जैसे ही आए हैं अटैक किया उन्होंने, चाहे आउट हो गए मैक्सवेल, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि हम इन पे आते ही इनको सेटल नहीं होने देना, इनको अटैक करना है और गेम को एक तरफ कर देना. तो आई थिंक Australians are looking very dangerous. Absolutely. Wahab,
ठीक है ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इसमें कोई शक की बात नहीं, बट आपको यूँ नहीं लगता कि थोड़ा सा ये जो 4 बॉलर स्ट्रेटजी है ये कोई इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, चूंकि श्रीलंका ने फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से, वो जो एंड में जो उन्होंने रन बनाए हैं वो उन्होंने टारगेट किया स्टोइनिस को और मैक्सवेल को, डोंट यू थिंक दैट चौथे बॉलर को 51 रन, वही मैं कह रहा हूँ, डोंट यू थिंक दैट स्ट्रेटजी डिडंट रियली वर्क फॉर देम? It didn't in this match probably, but देखें उनके जो बाकी बॉलर हैं जिसमें आप एडम ज़ेम्पा की बात कर ले, आप स्टार्क की बात कर ले, हेजलवुड की बात कर ले, उन लोगों ने दे हैव कंसीडर्ड ओनली 65 in 12 overs. कमिंस ने भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन अगर हम 4th और 5th बॉलर को मिला लें तो दे हैव कंसीडर्ड 85 of 8 overs, which is in T20 गेम which is okay. उसकी वजह यह है कि आपके एक या दो बॉलर ऐसे ज़रूर जाते हैं जिनको 10 की एवरेज से या 9 की एवरेज से रन होते हैं. दैट वॉज अ वरिंग साइन, बट देखिए उनको ये पता है कि एट वॉट मोमेंट दे हैव टू यूज़ विच बॉलर. उन्होंने बीच में ज़ेम्पा को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, वो आया, उसने बॉलिंग की है, उसने वहाँ पे विकेटें ली हैं. देन दे ब्रॉट देयर मेन बॉलर स्टार्क बैक, जब उनको विकेट मिली, ब्रेक थ्रू मिला. क्यों? क्योंकि वो मैच को लंबा नहीं लेके जाना चाह रहे थे. सो दे न्यू कि हमें किस वक्त क्या करना. सो यू नो वैसे भी जब इतना अच्छा बॉलिंग अटैक हो, आपके पास इतने अच्छे सीमर्स हो, सो यू ऑलवेज ट्राई कि आप ये कोशिश करें कि यार आप उन लोगों के इर्द गिर्द सबको खिलाएं. बिकॉज एक ऐसा बॉलर जो 5वां बॉलर जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सवेल इज अ बॉलर जो 4 ओवर कर सकता है. बट आई डोंट नो क्यों बोथ लेफ्टीज के अगेंस्ट दे हैवंट यूज्ड हिम आफ्टर द पावर प्ले. नाउ द क्वेश्चन राइजेस गाइस, आप तक सबसे क्वेश्चन आए तीनों से कि ठीक है 5वां बॉलर जो उनका नॉन रेगुलर है उसको 51 हुए उन दोनों को. इस मैच में तो उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया 156-53 पे. बट कोई सेमीफाइनल अगर आता है इनका ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी टीम से आता है, तो ये 5वां बॉलर इनको प्रॉब्लम नहीं देगा एट सम स्टेज? आई थिंक सो, स्पेशली इन कंडीशंस में दुबई में अगर आपके पास रेगुलर स्पिनर नहीं है. दूसरा देखें ज़ेम्पा 4 ओवर में 12 रन, और सरप्राइजिंगली आई मीन फॉर श्रीलंका इन एशियन टीम वो इतना बड़ा टर्न नहीं हो रहा था. गुगली वो कर रहा था और गुगली पे वो फंसे हुए थे. दे कुड नॉट स्कोर, इवन रन न बॉल भी कर लेते तो हो सकता है कुछ और बेहतर पोजीशन. प्रॉब्ली उनको गुगली उसकी नजर नहीं थी आ रही. दे लुक्ड बिट क्लूलेस, स्पेशली द यंगस्टर्स. देखिए उनकी जो स्ट्रेंथ है ना मोस्टली वो है फास्ट बॉलिंग. सो दे वोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द 3 सीमर्स जो वो खिला रहे हैं, बिकॉज दे नो दे आर अटैकिंग बॉलर्स, दे आर विकेट टेकर्स, दे कैन टेक विकेट एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन स्टेज. प्लस उनके पास ज़ेम्पा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है. सो आई डोंट थिंक दे नीड अ 5, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ हैविंग अ 5th बॉलर. मैक्सवेल अच्छी बॉलिंग करता है, अभी हमने मिचेल मार्श को नहीं देखा बॉलिंग करते हुए. स्टोनिस को हमने देखा कि इवन वनडेज में ही बॉल्स 10 ओवर. सो दे डोंट टेक हिम एज अ 5th बॉलर और द ऑपोजिशन डू. बट आज के दिन में दे डिड चार्ज हिम, बट मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी कि हाउ इट गोज फॉरवर्ड. बट आई थिंक दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू गो विद. Waqar, you wanted to say something? Yeah, great captaincy, Aaron Finch. I mean, एक टाइम पे chips were down. Yeah, big big time. You know, big time they were out. जब वो कौशाल परेरा खेल रहा था तो things were looking कि ये 180, 185 में भी कर लेंगे. लेकिन he kept himself cool. और जब वो वापस लेके आए ना स्टार्क को, और जब स्टार्क ने उसको आउट किया है, उससे पहले अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत चक्का उसने सामने स्टार्क को मारा था. और उसके बाद जब ओल्ड स्टार्क गेटिंग दैट यॉर्कर इन, उस विकेट से द होल मोमेंटम, द होल थिंग शिफ्टेड. क्योंकि फिर उससे क्या हुआ, उससे नया बैट्समैन आया और उसने स्ट्रेट वे ज़ेम्पा को लेके आया. और वो जो ज़ेम्पा ने वहां पे जो प्रेशर बिल्ड किया ना बाय बॉलिंग डॉट बॉल्स, दैट मेड अ डिफरेंट. बट आई मीन नो डाउट इनके पास, श्रीलंका के पास बैट्समैन ऐसे हैं जो फ्यूचर के लिए हैं. दे वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल. बट हम दोपहर को बात कर रहे थे कि दे इनएक्सपीरियंस, सम ऑफ देम आर वेरी इनएक्सपीरियंस. नॉट कौशाल परेरा is a seasoned player now. That's the hit I'm talking about. ये स्टार तो का छह ये सीजन हैं, लेकिन ये है कि जो अभी राजापक्षे हो गया या निशंका हो गया या ये जो प्लेयर है हसरंगा भी अभी टोटल न्यू एट दिस लेवल. दिस इज अ वर्ल्ड कप, सो द प्रेशर गॉट ऑन टू देम एंड दे क्रम्बल्ड अ लिटिल बिट देयर. They did. ज़ेम्पा की बात कर रहे थे. ज़ेम्पा really bowled really well. 12 रन 4 ओवरों के अंदर इतनी, और एशियन साइड जैसे मिसबा ने पॉइंट आउट किया. इनका ज़रा बॉलिंग का अंदाज देखिए कि इन्होंने आज जो है वो तकरीबन आधी गुगलियाँ कराई हैं और लेग ब्रेक कराए हैं. ये ज़रा कंपैरिजन आपको दिखाते हैं इनका. ये स्टैट भी आपके सामने अब आ जाएगा. ये ज़ेम्पा वेरिएशंस हैं आज शाम की. इन्होंने 45% गेंदें लेग ब्रेक कराई हैं और 55% गेंदें जो हैं इनकी वो गुगली थी. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाई परसेंटेज, बिकॉज ये भी देखें कि लेफ्ट हैंडर्स फेस कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो कोशिश कर रहे थे कि उनको स्पिनिंग अवे गुगली करें. और मिसबान का हाथ पता चलता है, अगर आप देखें गुगली का पीछे जो हाथ का बैक ऑफ द पाम है
वो नजर आता है जब ये गूगली रिलीज करते हैं पूरे का बिल्कुल पूरा। नॉर्मल लेग स्पिनर की तरह करते हैं, वो डिफरेंट एक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि जिस बॉलर की ग्रिप चेंज नहीं होती, रिस्ट थोड़ी सी होती है, उसको उस टाइम पे इतना जल्दी जो है ना पकड़ना मुश्किल होता है। क्योंकि आप देखें कि वो जो उसका जो रिलीज पॉइंट है वो सेम है, कहीं वो यूं नहीं होता या यूं नहीं होता, उससे भी कई दफ़ा आपको अंदाज़ा हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ है कि जब छोटा स्पिन होता है तो उसमें भी आपको फिर प्रॉब्लम होती है कई दफ़ा, आपको नहीं पता किस साइड पे मैं खेल रहा हूँ। जी बिल्कुल मिसबा भाई सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जैम्पा ने बॉलिंग किया है, ही नोज हिज वेरिएशंस, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया। उसने बॉल को थोड़ा सा स्लो भी इन दे स्लो भी पुश किया, जिधर उसको क्विकर वन करना था उधर किया। सो यू नो वेरिएशंस है, ही हैज़ दैट आइडिया, और बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें तो श्रीलंका और जो पेरेरा वो खेल रहे थे उसको, और वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। प्लस व्हाट आई थिंक इज़ कि जो जिस तरीके का स्टार्ट मिला है, नोबडी फ्रॉम द श्रीलंकन टीम कैपिटलाइज दैट स्टार्ट। राइट। हमने ये ज़रूर देखा कि स्टार्क ने एक बहुत अच्छा बॉल किया, यॉर्कर किया, जिस पे पेरेरा आउट हुआ। लेकिन श्रीलंका जो है वो अपनी विकेट जो है ही ट्राई टू गो, वो अनफॉर्चुनेट था, हाथ में चला गया। बट स्टिल देयर वन शुड हैव कैपिटलाइज्ड, बिकॉज द डिफरेंस इज कि डेविड वार्नर टुक हिज इनिंग्स टिल 50 प्लस 60 प्लस, एंड दैट मेक्स द मेजर डिफरेंस। इवन दो वी नो कि मैक्सवेल आया, उसने ट्राई की, वो आउट हुआ, बट ही न्यू कि उसको लंबा लेके जाना है। सो दैट वाज अ डिफरेंस दैट वी हैव सीन स्टार्ट्स फ्रॉम द श्रीलंकन, बट नोबडी हैज कैपिटलाइज्ड ऑन दैट। Yeah, the start was really good here as well today, and then it just all fell apart. I think you're right कि वो conversion नहीं हो सकी, 30-35 को 50-60 के अंदर conversion करने के लिए जो थी वो shortage हो रही थी। पैकेजेस की तरफ चलते हैं दोस्तों, और इसके साथ ही सबसे पहले आपको, बल्कि उससे पहले हम जाने से पहले थोड़ा सा और ये देख लेते हैं, जॉश हेजलवुड। आज जॉश हेजलवुड ने विकेट कोई नहीं हासिल की, और 4 ओवरों में 26 रन दिए। इकोनॉमी रेट वाज ओके, आई गेस फेयर, बट ही डिडंट रियली वो, आई थिंक द Sri Lankans were keeping an eye on him. I suppose when you जिस बॉलर से आप हल्का सा घबराते हो एज ऑपोजिशन एंड वेरी ऑफ, देन यू मेक श्योर कि उसको विकेट ना दो। बट आई सपोज ही वाज बिट अनलकी, और श्रीलंकन्स ने बड़ी कोशिश की है उसको विकेट देने की, बट वो लकीली वो उससे आउट नहीं हुए। बट यू नो जो श्रीलंका का स्टार्ट था कमिंग बैक, ये ऑस्ट्रेलिया की 5वीं जीत है कंसेक्यूटिव विन अगेंस्ट श्रीलंका। सो साइकोलॉजिकल एक उसमें वॉर में भी ना वो देर आप अहेड जब भी श्रीलंका से वो खेलते हैं। दूसरी चीज़ मेरा वसीम भाई, जैसे जॉश हेजलवुड को भी विकेट नहीं मिली, हम उसको देख रहे थे दोनों तरफ से जब स्टार्ट हुआ बॉलिंग का, तो पिच में नए बॉल पे कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी, वो नज़र नहीं आई। इजी पेस पिच था, फास्ट बॉलर्स आसान हुआ है, कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ दोनों टीमों को, उनको भी और उनको भी। तो आई थिंक पिछला जो मैच था उसमें फिर भी कहीं ना कहीं आपको और एक पते की बात बताता चलूं, अगर यही हमारे न्यूज़ चैनल होते कहते ब्रेकिंग न्यूज़ ये कल इसी पिच पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच। जी बिल्कुल इसी पिच, so that's a good thing for Pakistan, I guess. It's अगर भाई क्या कर क्यों? आई थिंक अगेंस्ट अफगानिस्तान मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर फ्रेश पिच होती, हार्ड फ्रेश पिच होती, थोड़ा थोड़ा ग्रास होता, वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को, बैटर्स को ज़्यादा हेल्पफुल होती, ज़्यादा। तो आपने ऑलरेडी तो थोड़ा सा अचानक डरा दिया सारे पाकिस्तानी फैंस, लाइक ये क्या कैसी बात नहीं, डरने कोई ऐसी बात नहीं है, बट एक याद रहे कि ये होम सीरीज नहीं है, ये आईसीसी टूर्नामेंट है, सो आईसीसी हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। हम तो कह रहे हैं इन एन आइडियल वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई एम in the ideal world. मिसबा भाई की बात को आगे लेके जाके जब हम जॉश हेजलवुड की बात कर रहे हैं, सो हमने ये बात की थी कि श्रीलंकन पेसर्स का भी कितना इम्पैक्ट होना चाहिए इस गेम में। अगर आप ये देखें कि जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उन्होंने भी उसी विकेट पे बॉलिंग की है, प्लस ऑस्ट्रेलियंस ने भी नया बॉल उसी विकेट पे किया, पर डिफरेंस आ गया था लेंथ का। एज वी मैंशन बिफोर कि अगर आप प्रॉपर अच्छे चैनल पे बॉलिंग नहीं करेंगे, सो ऑस्ट्रेलिया ऑजीज विल कम एंड अटैक यू, और उन्होंने अटैक किया है और लहीरू कुमारा को ठीक ठाक मार पड़ी। एंड इफ यू सी दैट कि उन्होंने अपने 8 ओवर में इनके फास्ट बॉलर्स ने श्रीलंका के दे हैव कंसीडर्ड 100 रन्स। आई थिंक पेस नहीं फर्क था ये कि जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस ने जो अपने वो कटर्स यूज किए ना, दैट मेड द डिफरेंस। शुरू में तो Wahab is pointing out as well कि जो श्रीलंकन बॉलर्स की कमी, उनको भी मार पड़ी है, नए बॉल पे उनको भी दोनों टीमों को मार पड़ी, बट वंस द बॉल गॉट लिटिल बिट ओल्डर
पेसर्स ने कटर्स ऑस्ट्रेलियंस ने मुंह में नहीं किए, बेहतर मुंह में नहीं किए, वो बाउंसर Back of the टाइप, length, back of पीछे the bouncer length type। किए। एक शॉट जो और था मारा है। फिंच का, आपने अगर देखा हो तो वो बैकफुट पे उन्होंने जो स्क्वायर कट टाइप की चीज मारी है, छक्का मारा है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, शॉर्ट पिच डिलीवरी आउटसाइड एंड जस्ट स्लैश्ड इट एंड इट वेंट फॉर अ सिक्स। देखिए दे हैव गिवन मोर रूम। Yeah. जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उन्होंने दे हैव गिवन मोर रूम, दे वर एक्यूरेट, दे वर मोर ऑन, दे हैड बोल्ड मोर चैनल बॉलिंग द ऑजीज, बट इन्होंने थोड़ा सा रूम दिया। और फिर जब शुरू में उनको स्कोर हुआ भी है, सो दे केम बैक ऑजी बॉलर्स इन द मिडल, और उन्होंने आके बॉलिंग अच्छी किया एंड दे ब्रॉट द गेम बैक। लेकिन इधर क्या हुआ कि इधर जो फास्ट बॉलर्स थे दे हैव बीन केप्ट ऑन गोइंग, सो दिस कुड बी अ प्लान कि क्या कहते हैं, आप फास्ट बॉलर्स को अटैक करें ताकि वो स्पिनर्स जल्दी लेके आए। बिल्कुल ऐसे बट ये आई वाला ऑल्सो shot था जिसकी मैं बात कर रहा थिंक था। कि आपका जो मेन बॉलर हसरंगा है, व्हेन यू नो कि पावर प्ले में यू नीड विकेट्स ऑन दिस टोटल, अगर आपको ऊपर से 1 या 2 विकेट मिल जाती तो यू वर इन द गेम। आई डोंट नो व्हाई हसरंगा वाज नॉट ब्रॉट इनटू द फर्स्ट 6 ओवर्स। अगर उसको भी 10-12 रन हो जाते उस ओवर में तो दैट वुडंट हैव मेड अ डिफरेंस, बट ही इज योर अटैकिंग बॉलर, उसको अगर वहां पे विकेट मिल जाती तो ही मस्ट हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन I Again, think normally, the captaincy and experience for the Sri Lankan captain maybe. नॉर्मली फ़खर फिंच के अगेंस्ट जो नॉर्मली टीमें अटैक करती हैं, लेग बिफोर का चांस होता है फुलर, और नॉर्मली लॉन्ग ऑन पीछे ले जाते हैं फास्ट बॉलर के लिए, पहले 6 ओवर में स्केयर लेग और लॉन्ग ऑन रखते हैं, थर्ड मैन ऊपर रखते हैं, क्योंकि उनको ये लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर तो किलर है, मतलब वो बहुत फ्लुएंट है वहाँ पे। इवन बीच में भी अगर 2 फील्डर भी आपने पीछे रखे हुए हैं, स्केयर लेग रखा हुआ है, मिड विकेट रखी हुई है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वो नहीं छोड़ेंगे। ओनली चांसेस आप पेस को मिक्स करें, थोड़ा स्केयर को बाहर रखें, लॉन्ग ऑन रखें, और फुलर थोड़ा करें, उसको विकेटों में अंदर लाने की कोशिश करें, लेग बिफोर का चांस है, बिकॉज दैट इज हिज पिकअप शॉट जो सामने बहुत अच्छी मारते हैं अगर फुलर बॉल करते हैं। वो फील्डर पीछे होता है तो उनको मुश्किल होती है। थोड़ा सा वो चेक आई करते थिंक हैं। लैक ऑफ वेरिएशंस, दैट्स अनदर थिंग। बिल्कुल वेरी नहीं की पेस, एक पेस पे ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की और वहां से Just gave him too much room. जब ये पता है फिंच का कि वो इतना पक्का है ऑफ स्टंप के बाहर, वो यूं लग रहा था कि वो उसके चैनल में बॉलिंग कर रहे हैं कि हेलो भाईजान ताडेली। That's obviously inexperience. Yeah. ये bowlers थोड़े young हैं, इनको पता नहीं है इतना और कंट्रोल नहीं है इतना, maybe that's why. All right, with that, it's time for Man of the Match, brought to you by Pakistan Cables. अगर ये कैच ले लिया होता वसीम भाई तो कहानी कुछ और हो जानी थी। वही अगर पुप्पी को मूछें होती तो चाचा कहते। That's true. But he was No, but yeah, David Warner was at 18 at the time. I know, very crucial और रेगुलर कीपर है और it was a dolly. देखें Just a simple catch, he just fumbled it. वसीम भाई, अगर आप वार्नर के स्टैट्स देखें अगेंस्ट श्रीलंका, 512 रन, ऑलमोस्ट 57 की एवरेज है उनकी। ही इज लविंग श्रीलंकन्स, जिस And I तरीके से उन्होंने think परफॉर्म after the drop catch, Sri Lankans are loving him. 18 पे कैच छोड़ा और उसके बाद उसने मैच बंद से ओवरऑल भी डेविड वार्नर की हम बात करेंगे, आउट ऑफ फॉर्म है, रन्स नहीं किए हुए, ठीक है लीग क्या में था रन्स नहीं वजह किए। क्या थी इस वक्त? गेंद गर्म बहुत ज्यादा था क्योंकि यूं जिस तरह कोई गर्म चीज नहीं आप पकड़ लेते, इस तरह टाइप का उन्होंने कैच यूं किया, स्टफल किया। बुरा टाइम था बस। बुरा टाइम था एक्चुअली। I mean, he's a really good keeper, but that was not the best easiest effort. of the catches Okay. आपसे ड्रॉप हुए। Let's start with Wahab. Yeah. सबसे इजी कैच कौन सा ड्रॉप किया तूने अपने करियर में? Any? We got a few. I hardly remember. अरे हाँ, ये वाला Vicky? पॉइंट नहीं आती था। ये तो चीज याद रखते हैं, पे दोबारा आते हैं। Vicky, any you remember any dolly you dropped? नीचे में पहले बता के आया करें। वो जो इधर से हमें ना आप मौके पे सबसे अचानक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे अब इतनी पुरानी बात है कि मुझे याद मैंने भी तो नहीं आपको है। पहले ही बताया, मेरे से जो सबसे इजी कैच ड्रॉप हुआ, जयवर्ध ने 0 पे सोहेल खान का डेब्यू, स्लिप में मैंने बहुत आला 3 कैच पकड़े, Okay. और दैट वाज अ डॉली लाइक दैट। वो स्लिप में ऐसे ही आया जैसे स्लिप में रनिंग किया जाता है, बिल्कुल यूं। मैंने कहा ओह जी गल ही कोई नहीं, ऐसे की था नीचे, एंड ही स्कोर्ड 200 कराची नेशनल से। सोहेल खान आज तक मेरे से नाराज। मैंने एक ड्रॉप किया था लाहौर में अगेंस्ट श्रीलंका, नवा कप्तान बने था, तो फाइनल लेग से सीधा मिड ऑफ से सीधा शॉर्ट मिड विकेट या कवर या इस तरह की सिचुएशन। तो वो आया ही था, अभी पहला ही गेंद था, आई डोंट नो कौन सा क्लैन कर रहा था या मुशी कर रहा था, तो उसने बैकफुट पे जाके ऐसे पंच किया, नहीं वो स्ट्रेट, वो मेरे हाथ को नहीं लगा, सीधा मेरे ना पेट को लगा, मेरे हाथ को लगा ही नहीं, लगा डूम नीचे।
200 नहीं, मैंने आई थिंक वो भी 200 वो भी 200 200 करके चांसलेस ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में छोड़ा था, आइदर इट वाज अ वर्ल्ड कप और अमेरिका कप समवेयर, वो आई थिंक उसने शॉट मारी, अरविंदा था, निकला, मैंने पीछे किया, उसने निकल के मारी, पुल खड़ा हो गया। और इधर आई थिंक जावेद भाई थे, इधर इमरान भाई थे, मैंने कहा वेट इज माइन, मैंने चीखें मारी हैं, माइन माइन माइन, पूरा नीचे खड़ा हुआ ऐसे पूरा सेट किया है और गेंद 2 फुट आगे गिर गई। 2 फुट, नॉट अ फुट, 2 फुट आगे। एंड ऑन दैट नोट देखते रहिए द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हम लेते हैं एक वक्फा, सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल और हमारी बराह रास्त साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑन 10 स्पोर्ट्स। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, आपसे कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को दुबई में शिकस्त दी है। वर्ल्ड कप के इस पूल में वो बड़े कंफर्टेबली 2 मैचेस जीत चुके हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू चल रही। एंड दैट्स दैट। दोस्तों, वक्त हुआ है कि मैच शुरू होने से पहले हमने अपने एक्सपर्ट से कहा था कि उनको मैंने एक पर्ची दी थी और कहा था कि अब अपना अपना स्कोर जो है वो लिख दें, जो सबसे ज्यादा दूर, जिसका भी टोटल जो सबसे करीब होगा टोटल के, वो ऑफ कोर्स विनर होगा। जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसको हमें खाना खिलाना पड़ेगा। और शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने नाम लिखे हुए थे सबके पर्चियों पे, तो ये पहली पर्ची है और ये है वकार भाई की। वकार यूनुस has said 167। अगर अकलमंदी से खेलते तो इससे ज्यादा ही हो जाते। 167 for वकार यूनुस। बटुआ तैयार करो अपना भाई साहब। जी। And Wasim 152। I think Wasim bhai- Oh my goodness me, well done। Experience coming into ये play। बाल धूप में सफेद नहीं हुए मेरी जान। 152। Misbah, like always, safe 140. Trying to play it safe. Almost got there, but then सोनियस मरवा गया मुझे। मरवा गया आपको। और दोस्तों, आखिरी पर्ची वहाब रियाज की। वहाब ने कहा है 150। 150। मैं जरा दोबारा देखिएगा पर्ची को, इन्होंने ये प्लस भी लिखा है साथ ये में। क्या है ठीक है ना? 150 प्लस? मगर मैं 200 तक जितना भी हो। 150 to 160। So he made What one- is 150 plus means to He you? means 199। What is 100 plus means to you? मेरी बात वसीम भाई Anything। वसीम भाई 200 plus। Here we go. एक मिनट खाना- रुकिए खाना जनाब, मैम, जरा मैच ये करा देता मैच हूं। समरी लगाइएगा सामने। टोटल देखिए मैच समरी पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं 154, 155। So the closest one here is Mr. Wasim Akram। Yes, well done। आपको हदीसा खाना मुबारक। वहां पे आ गया। और दोस्तों, खाना जो है वो एक्चुअली इस साइड पे जो है ना, विक्की भाई, क्योंकि इसका मैं 150 काउंट विक्की, कर रहा हूँ, देखिए। प्लस तो मैं मान नहीं ये इन्होंने पहले ही कह दिया था प्लस काउंट होगा 150 काउंट 150 होगा। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया था कि Thank नहीं you। होगा। तो which leaves you have a difference of 13। Oh, wait a minute। मिसबा भाई lose मेरे this। पे आ गया। मिसबा भाई, मिसबा भाई। 14 14। Oh, 140 and 155। आपने So वहां को बचा लिया। 15 रन का आपका डिफरेंस नहीं, ये एक तो कैसे ना 15 रन का इनका डिफरेंस बना, तो आपका कितना बना? 155। 13 रन। 13 कम रन का है। 15। 12। मिसबा 12 रन का। मिसबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने कामयाबी के साथ एक खाना जो है आपने हमें खिलाना है, ठीक है ना। ये मेरा ख्याल है हम ट्रेडिशन बना लेते हैं, हम हर बड़ी गेम के लिए ये किया करेंगे। कैसे, क्या व्हाट डू यू थिंक? खाना भी आएगा मेरे पहले फेवरेट। खाना आएगा तो दाल तब। चावल आ जाएंगे। नहीं, दाल चावल नहीं, खाना हम बताएंगे कि खाना कहाँ से आएगा। मैंने वो T9 वेगू बीफ मंगाना है, स्टेक। बिल्कुल ऐसे बस ऐसे ठीक है। ऐसे। मुझे कोई सुशी वुशी चाहिए, हेलो हम बताएंगे खाना कहाँ से आना है ना। ये नहीं है कि मैं दाल मंगवा लूंगा और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ठीक कोई है ना। बराबर कर लो। नो अफगानी पुलाव All right, दोस्तों, there you have, that is the way it all went down, but it was a great game of cricket। The World Cup moves on। और अब से कुछ देर बाद क्या, अब से ही हम शुरू करते हैं अपना आस्क द पवेलियन के सवालात का सिलसिला, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। वो सवाल जो शायद मैं ना पूछ रहा हूँ और आप पूछना चाहते हो, वो हम अपने पैनल तक यहाँ पर पहुँचाएं।
हैशटैग आस्क द पेविलियन इस्तेमाल करके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे जो सोशल हैंडल्स हैं उस पे जाकर अपना सवाल जो है वहां पर रखें, और फेसबुक पे भी, एंड हम यहां पर आपके सवालात जो हैं वो शेयर करेंगे। शुरुआत करता हूं मैं जनाब। पहला सवाल हुनैन बिन जब्बार। हुनैन बिन जब्बार आज द पेविलियन का क्वेश्चन है मिसबाह आपके लिए स्पेसिफिकली। इन्होंने कहा है कि इज देयर अ प्रॉब्लम विद इमाद्स फिटनेस? व्हाई वर दे हाइडिंग हिम एट फाइन लेग इन बोथ द मैचेस? In both matches, he gave away one easy boundary. He was not that bad in the past. Malik is easily 10 years older than him and looks much more fitter. Is there something going on? Question for you. I think इमाद का थोड़ा सा नी का इशू है जिसकी वजह से उसको obviously he is not quick mover right left, तो कोशिश करते हैं कि उसको ऐसी किसी हॉट स्पॉट पे खड़ा ना करें, स्पेशली in the middle जब वो bowling शॉलिंग करके जाता है, तो that's why I think he's just staying at fine leg. And was he also got that hit on his knee as well while he was batting? पिछले that मैच was बाद में हुआ था, That was fielding के above बाद. the knee. That was above the knee. Just above the knee. But I think क्या ओके, सो वो था चूंकि वो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि किस तरह हमारे देखने वाले, हमारे जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, वो क्या ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि उसने कहा कि ये दोनों में उसको फाइन लेग के पीछे छुपाया हुआ है वो, और किस तरह उन्होंने जो है ना वो किया। आई रियली अप्रिशिएट इट, सो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू वकार। एम अली ज़िमरान पूछ रहे हैं, वकार भाई, a question for you. Wasim bhai has said that he found Martin Crowe as the most difficult batsman. Who do you say was the most difficult batsman for you? Martin Crowe has scored a lot of runs against us, especially जो 1991 की सीरीज जब थी। रिवर्स स्विंग का पता भी नहीं था हाँ, किसी को भी। 1991 की सीरीज जो होम सीरीज थी, जब हम 200 की जब हम जवान थे, तो वी वर बॉलिंग क्विकली और हमारी टीम बहुत तगड़ी थी, एंड ही केम, दे लॉस्ट द सीरीज, बड़ी बुरी तरह सीरीज हारे थे, लेकिन ही स्कोर्ड 200 इन दैट सीरीज। एक आई थिंक कराची और एक शायद उसने लाहौर किया था। Yeah. 2 सेंचुरियां की थी और प्लेड लाइक अ चैंपियन, यू नो, ग्रेट बैट्समैन, अनफॉर्चुनेटली नो मोर, इज नो मोर अलाइव, वेरी नाइस मैन ऑल्सो, और मेरे ख्याल में यस टेक्निकली वेरी साउंड, लाइक बाबर, जैसे बाबर है ना, इसी तरह का सिमिलर, यू नो, ऑन दी अप स्ट्रोक भी खेलना है, छोड़ना भी है, टेस्ट मैच में, वनडे में अटैक भी करना है, सो ही वाज अ वेरी कंप्लीट काइंड ऑफ अ बैट्समैन। Nice. But I would say Brian Lara, when he is on song, oh my God, it was hard to bowl at him. Oh, absolutely. हारिसुर रहमान सवाल है मिसबाह उल हक आपसे। वो ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिन किस तरह वो सबसे इफेक्टिव तरीके से खेल सकता है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप डेमो दे सकें, बिकॉज हम बहुत सारे यंगस्टर्स जानना चाहते हैं कि हाउ अ लेफ्ट हैंडर शुड प्ले एन ऑफ स्पिन बॉलर। सो हियर इज द बैट। And let's, in fact, Wasim, why don't you assist him? Because you're a lefty as well, so maybe you can take that. Left-hander bats मेरा तो against एक off ही- spinner. जी, मेरा right hand तो off वो he spinner. can play the right-hander जो बन के तो left-hand spinner को खेल सकते हैं, same thing. Right. Okay. देखें, सबसे इम्पोर्टेंट Smart मैंने जो thinking. देखा है, मेरे सामने ऑफ स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हुए मैंने देखा संगकारा को अगेंस्ट सईद अजमल, Yeah. अगेंस्ट हफीज। तो व्हाट as seen noticed कि नॉर्मली राउंड द विकेट करते हैं राइट हैंडर को, लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्पिनर आके, तो होता क्या है, उस एंगल की वजह से सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, आप उस एंगल बॉल अंदर को ड्रिफ्ट कर रहा होता है, जबकि वो नेचुरल वेरिएशंस की वजह से कई दफ़ा बॉल पड़ के पिच उस एंगल की वजह से सीधा रहता है और कोई बॉल ब्रेक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ऑलवेज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ लेफ्ट हैंडर कि मैंने कौन सी लाइन खेलनी है। मैं इसको अंदर खेलूँगा तो स्पिन हो गया तो मसला है, और अगर मैं इसको स्पिन खेलने जाता हूँ तो मेरे पैड पे लगने का चांस है और मेरे लिए मुश्किल होती है। तो क्या करता था संगकारा बेसिकली, जैसे ही बॉलर इधर को आता था, ही नेवर स्टूड एट लेग स्टम्प और टू लेग, वो ऑफ स्टम्प पे आ जाता था। ऑफ स्टम्प पे आने का मकसद ये है कि अब कल मैं जैसे फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा था कि मुझे यूं नहीं जाना पड़ रहा, जब बॉल विकेटों पे है तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द बॉल, और मेरी आई से अगर बाहर है बॉल तो वो मुझे पता है कि विकेटों के बाहर है। नाउ इट्स अप टू मी, मैंने इसको खेलना है नहीं खेलना। बीच का बॉल मैं पैड के आगे बल्ले से खेलूँगा,
तो दैट वाज हिज स्ट्रेटजी। और वो वाहिद बंदा था जिसके पैड पे बॉल मुश्किल ही लगता था। वो बड़े आराम से ऑन पे, सामने, मिड ऑफ पे सिंगल्स करता था, और अगर बाहर बॉल आती तो उसको कट खेलने जाता था। दूसरी जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, टू प्ले एनी स्पिनर एज अ बैट्समैन, आपने 50-50 नहीं खेलना। कोशिश करनी है कि जो आपकी पोजीशन है, फीट पोजीशन अगर दिखा 50-50 सके, मतलब मिसबा 50-50 इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ओके मैंने या पूरा कोशिश करना है कि मैं बॉल के ऊपर जाऊं, पिच पे पहुंचूं, ओके या फिर मैंने डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज करनी है और कोशिश करनी है पूरा पीछे आके खेलना है। ऑन द, जैसे आदत होती है कई दफा कि बॉल दूर गिर रहा है, मैं पहुंच भी सकता हूं, बट मैं छोटी टांग के साथ उसको वहीं से खेलने की कोशिश करता हूं, तो उसमें जहां वेरिएशन होगी, बॉल स्पिन हो गया, ड्रिफ्ट अच्छा हो गया, आपको ले जाएगा। ओके All right, very good. Thank you, Misbah. Really appreciate it. Thank you very much. We've got that. सवाल है सदाकत हुसैन आपकी तरफ से, और ये सवाल वसीम उन्होंने आपसे पूछा है। सदाकत हुसैन कह रहे हैं, My question to Wasim bhai, 2 new balls in ODIs have made reverse swing very less in recent years. Do you think that this has affected many fast bowlers who really depend on reverse swing in death overs like Wahab Riaz? सदाकत, सबसे पहले तो जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया है 85 ऑनवर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2 नए गेंद रखते थे। 92 वर्ल्ड कप में भी 2 नए गेंद थे। तो ये नहीं कि उसकी वजह से रिवर्स स्विंग कम हुई है, मे बी। और एक दौर आया था कि जब वनडे क्रिकेट में भी लेट 90s में ये लॉ बन गया था कि सब कॉन्टिनेंट में 34 ओवर के बाद, 34 ओवर के बाद गेंद चेंज करते थे। दैट यूज्ड टू बी वेरी अनोइंग टू अस एज बॉलर्स, बिकॉज बाय द टाइम यू वेट फॉर रिवर्स स्विंग, एक गेंद था कि 34 के बाद आपको सेमी न्यू बॉल पकड़ा देते थे वो। बिकॉज उसकी रीज़न ये थी कि हमारे यहाँ जो पिचेस है सब कॉन्टिनेंट में, वो गेंद का जो लेदर जब उतरता था तो उसका जो नीचे कलर है वो ब्राउन था, बेज कलर। सो वही बेज आपको पिच की तरह हो जाता, तो बॉल नज़र नहीं था आता। दैट वाज द रीज़न कि गेंद चेंज किया था। मगर ये 2 गेंदें बड़ी पुरानी लग रही हैं। जब से ट्राई सीरीज हम खेलते थे, न्यूजीलैंड जाते थे, हमेशा 2 गेंदें लगती थी, और सब कॉन्टिनेंट इंग्लैंड वगैरह में 1 गेंद लगती थी। और इंग्लैंड 99 वर्ल्ड कप में ड्यूक वाइट्स बॉल था। Duke was small. I mean, it felt small. I wish we can organize some balls in next couple of shows. Duke का मिल जाए, एक हमें कोकोबोरा का मिल जाए, और एक लोकल मिल जाए, ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें डिफरेंस क्या है इन तीनों में। उन्होंने कंपैरिजन का। ओके, हक नवाज का सवाल है। वकार, आपको ये सवाल देता हूँ। क्वेश्चन फॉर द पैनल, आई विल गिव इट यू। शुड द एम्पायर्स बी penalized for wrong calls? This may improve the umpiring standards. In today's game, in Sri Lanka's game, the third umpire called a no ball of Hasaranga, but there was part of the heel behind the line. Yeah, that is true. Right? ये बात तो सही है कि वो बॉल हमने भी डिस्कस की पिछले बैठे हुए थे रूम में, कि वो बॉल अंपायर थोड़ा सा हाश था। अब क्या होता है कि जो थर्ड अंपायर है वो एक अंपायर ऊपर जो कमरे में, ठंडे कमरे में, वो एक जो उसके पास मॉनिटर है वो सिर्फ नो बॉल देखता है, Right. ताकि वो एग्जैक्टली अगर उसमें Every बॉल दैट्स हिज जॉब, Okay. कि अगर वो उसमें भी मिस्टेक कर रहा है, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद हिम। कि There एक is जॉब some है, coffee जस्ट गॉट टू articles. सी दिस कि अगर ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन से पीछे है। सो आई आल्सो फेल्ट फॉर हसरंगा देन जब वो नो बॉल दिया गया था। हाँ, इसमें ये होता है, क्या नाम बताया आपने, हक नवाज साहब जी। इसमें होता ये है कि आप एक कोचेस रिपोर्ट होती है और एक कैप्टन्स रिपोर्ट होती है, जो आप लिख के एट द एंड ऑफ द गेम आप रेफरी को देते हो। वो रेफरी आईसीसी को पहुंचाता है। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें वो सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, और उस बेस पे जो अंपायर्स हैं वो अपग्रेड होते हैं और डाउनग्रेड होते हैं। आप देखते होंगे कि जो अलीम डार नंबर 1 हो गया, साइमन टोफल नंबर 1 हो गया, फलाना नंबर 3 हो गया। वो इसीलिए होता है कि जितनी रिपोर्ट्स हैं, जितने टूर्नामेंट्स हैं, जितने बायलैटरल सीरीज हो रही होती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जाती हैं, और उनको जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें सारा रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद वो एवरेज निकालते हैं। हमारे टाइम में विकी हमने कितनी रिपोर्टें दी हैं अंपायरों के कि उस ये ज़माने ठीक में नहीं नहीं है, था। उस ज़माने में ये शुरू में ठीक तो नहीं है। स्टीव बकनर 100 साल अंपायरिंग कर गया।
मगर चेंज नहीं किया उन्होंने। देखो हमारे यहाँ तो उस टाइम पहले तो अंपायर भी अपने ही होते थे, हर जगह जो जाते थे उनके अपने होते थे। Yeah. फिर इमरान भाई ने पहली 89 में। दफा 89 में वो चेंज किया, फिर देन स्लोली टुक अ लिटिल बिट टाइम, फिर ये न्यूट्रल अंपायरिंग। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर क्रिकेट, लेकिन दिस इज द प्रोसेस हाउ दे यू नो Graded. scrutinize the umpires and grade उनको किस तरह बनाते हैं। All right, thank you, Waqar. सवाल, and Wahab, I'll take this towards you, okay? ये है R.M. अरसलान, रम अरसलान, आपकी तरफ से सवाल है. My question is actually है तो आप सबसे, but I'll put it to all three of you because it's a very interesting question. Wasim, Waqar, and Wahab, both, please tell me about what is the other thing for a bowler if his seam is perfect. If it's is it the palm or the wrist? Please explain why everyone can't get the extravagant swing like you guys. So ये ball आ गई बिल्कुल. So आप पहले जवाब दो। पहले Wahab, let's start with you. स्विंग ही काम You the senior most आप भाई। जी, Wasim. I'm the oldest school in there. I suppose every bowlers vary. मैं डिफरेंट हूँ वकार से, और इवन लेफ्ट हैंडर है मैं, वहाँ बड़े डिफरेंट है हम. मैं अपनी स्विंग यूज़ करता था रिस्ट से, रिस्ट में बड़ी यूज़ करता था. आई डोंट नो आजकल के बॉलर्स करते हैं नहीं करते. सो मेरी इन स्विंग के लिए मैंने बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है. ये मेरी इन स्विंग ग्रिप थी, मेरा अंगूठा देखे अंदर है, और ये गैप कम से कम में नहीं तो अबाउट एक उंगली का गैप है, बिकॉज बिल्कुल बॉल अंदर भी नहीं पकड़ सकते आप, बिकॉज फिर वो निकलेगा नहीं. ये जरा जूम इन कर लें और करीब ले आए ताकि वसीम भाई के हाथ का बिल्कुल ये वसीम there you go. ये देखें, ये इतना गैप है, और मैं इतने गैप में बॉल भी, वकार भी, आई थिंक में इमरान भाई, ये सारे ऐसे ही पकड़ते थे, और मेरा फिर सीधा मैं करूँ तो ये ऐसे आ जाता है. सो देखिए मेरी सीम पोजीशन किधर है, इट्स टुवर्ड्स राइट हैंड है, तो इट्स टुवर्ड्स लेग स्लिप ऑफ अ राइट हैंड बैट्समैन. जब मैं भाग के आता तो मैं अपनी रिस्ट को ऐसे लॉक कर लेता था. ये देखें, अभी मेरी रिस्ट लॉक है, अब यहाँ से आऊँगा तो मैं यहाँ से फ्लिक करूँगा, और थोड़ा शोल्डर भी मेरा यूज होता था. दैट्स दी इन स्विंग टू द राइट हैंडर. वो ऑब्वियसली ऊपर से आएगा, और आउट स्विंग के लिए यही बॉल को मैं कर दिया फर्स्ट स्लिप की तरफ सीम को, और इसको बजाय लॉक करने के मैंने बार खोल दिया, और मैं यहाँ से फिर ऐसे फेंकता था, ये फ्लिक करता था. इससे मेरी आउट स्विंग होती थी राइट हैंड को. इट टुक मी टाइम, ये नहीं कि स्ट्रेट अवे में सब कुछ सीख गया था. काफ़ी मेरी नेचुरल स्विंग इन स्विंग थी. उसके बाद आई रियलाइज़ कि मेरे सारे मुझे अंदर मैंने ये भी सीखना, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखना शुरू किया. नेट में 2 कदमों से 3 कदमों से शुरू में पहले 6 महीने पेस बड़ी कम रही मेरी, बिकॉज ये मेरे मसल्स स्ट्रांग नहीं थे रिस्ट के. इवेंचुअली कुछ 6-8 महीने मैचों में कर करके स्लो पेस के साथ मेरी पेस फिर एक्चुअली वापस आ गई थी विदाउट स्विंग एज वेल. विकी, यू फॉर राइट हैंडर. Yes, for a right-hander. शुक्र है मैं कैच कर लिया। अब मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ बॉलर्स की मुख्तलिफ ग्रिप्स होती हैं, मुख्तलिफ बॉलर्स के मुख्तलिफ डिफरेंट एक्शंस होते हैं. वसीम भाई आपका प्रॉबली क्योंकि आर्म स्पीड इतनी ज़्यादा थी तो यू डिडंट नीड टू लॉक दिस वे. अब मैं ऐसा था कि मैं क्योंकि पहले अपने करियर के को 3-4 साल तो मुझे नया बॉल मिला ही नहीं, बिकॉज इमरान भाई भी थे, फिर आकिब ने भी बॉल किया, एंड देन यू यूज्ड टू टेक अ न्यू बॉल. मुझे पुराना बॉल ही मिलता, सो इतना मुझे वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी. बट मेरी ग्रिप थोड़ी सी फ़र्क थी आपसे. गैप वाली बात एग्जैक्टली इज़ राइट कि गैप होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए हाथ में. बॉल जितना कंफर्टेबल होगा उतना ही अच्छा है. यू यूज्ड टू पुट योर thumb under like that, लेकिन this was very uncomfortable for me. I used to put that knuckle on the ball. So that's what my feeling was. My best feeling was this कि ये knuckle जब तक सीम के ऊपर नहीं होता था तो मुझे वो फील ही नहीं आती थी कि मैं जोर लगा सकता हूँ. तो फिर दूसरी बात ये है कि मैं क्योंकि मेरा लंबा रनअप था, लंबा स्ट्राइड था, तो मुझे क्या होता था कि मैं वाज वेरी साइड ऑन बॉलर. तो मुझे पूरा जब तक इस शोल्डर को, जो लेफ्ट शोल्डर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस शोल्डर को जब तक जितना मैं बंद करता था, दैट मीन्स आई एम कमिंग फ्रॉम हेयर, आई एम कमिंग फ्रॉम द साइड. उसके साथ आपको पिवट भी मिलती होगी. पिवट तो आगे से मिलती थी, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि आई यूज्ड टू जस्ट गो साइडवेज, एंड देन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी जब मैं बॉल छोड़ना है मुझे, तो ये जो मेरा पाम है पूरा ऐसे हाथ, इट हैज़ टू कम डाउन स्ट्रेट. आउट स्विंग मेरा इस शोल्डर से होना है बिकॉज आई क्लोज दिस. तो जब मैंने इसको खोलना है इसको, तो माई हैंड इज गोना कम डाउन, द पेस इज गोना कम डाउन फ्रॉम देयर. बट होना क्या है कि ये अगर पाम मेरी बिल्कुल सीधी जाएगी एंड आई विल फिनिश इट लेट, व्हाट विल हैपन इज द बॉल विल गो स्ट्रेट एंड देन विल गो अवे. लेट स्विंग जो होता है ना, जो मेरा बॉल कभी कभार लेट स्विंग होता था, दैट वाज द रीजन कि मैं उसको रिलीज बहुत कोशिश करता था, लेट करता था,
उससे क्या होता है कि रिलीज करने से, लेट करने से आपकी ये जो फिंगर्स है दोनों ना, ये बॉल के ऊपर काइंड ऑफ बैक स्पिन देती हैं। तो बैक स्पिन जब आप उस पर आते हैं ना, दैट्स हाउ द बॉल सॉर्ट ऑफ गोज अवे फ्रॉम द राइट हैंड, स्पेशली विद द न्यू बॉल। ओल्ड बॉल पे हम किसी दिन फिर बात कर लेंगे, बिकॉज आई वुड लाइक वहाब आल्सो टू एक्सप्लेन। वहाब्स एक्शन वाज टोटली डिफरेंट टू ऑल ऑफ अस। Yes, let's Wahab, your turn. मेरे क्योंकि मैं ज़्यादातर नया बॉल यूटिलाइज नहीं किया, चेंज पे बॉलिंग करता हूँ, तो मेरी जो ग्रिप है वो ऐसे है कि मैं बहुत टाइट पकड़ता हूँ बॉल को। तो आप गैप नहीं देते? मेरे इधर गैप हार्डली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरा बच्चों को दिखाएं। दिस इज हार्डली कि मेरे यहाँ पे जो है वो गैप होगा। सो आई बेसिकली होल्ड दिस बॉल लाइक दिस टाइट, और उसके बाद आई बॉल, क्योंकि मैं शोल्डर से ज़्यादा बॉल करता हूँ, सो आई यूज़ माई शोल्डर टू बॉल लाइक दिस। और सिर्फ एंगल क्रिएट करने के लिए चेंज पे आई जस्ट बॉल अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर। और रिस्ट जो है वो मेरी सीधी बहुत कम रहती है, मेरी जो रिस्ट है दैट इज मोर लाइक दिस। तो जब मैं डिलीवर करूंगा तो वो इवन डिलीवरिंग पे भी मेरी आप देखेंगे कि रिस्ट की जो शेप है वो ऐसे रहेगी, इस तरह रहेगी। इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। सो दैट्स द डिफरेंस आई हैव। अगर नया बॉल करूंगा तो वो फिर डिफरेंट PSL में करने हैं गेंद कर तो रहा था वो, फिर ऐसे करके ये थोड़ा सा, फिर इसमें ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा टू गेट इट गो। इससे स्विंग के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको फिर इधर आगे पकड़ता हूँ, और मेरा जो थंब है, जब तक मुझे बिल्कुल टाइट ग्रिप यहाँ से फील नहीं होती, क्योंकि आप तो ऐसे रखते हैं, वकार भाई ऐसे रखते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अनकम्फर्टेबल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बस इसको टाइट पकड़ूँ, तो वो पूरा बॉल ही मेरा फिर जो है वो पूरी यूज दैट उसके ऊपर बिठाना पड़ता है। और फिर उसके लिए जब इन स्विंग करता हूँ तो वो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा बॉल इस तरह पकड़ के टिल्ट कर लेता हूँ अंदर की तरफ राइट हैंड रखे, और फिर इसको थ्रू ऐसे ही अपनी पेस और वो जो रिस्ट है उसको स्लो, मतलब इसको जैब नहीं करता, इसको बस ऐसे रिलीज कर देता हूँ छोड़ने के लिए। फखर, एक और चीज वसीम भाई, विच आई हैव लर्नड नाउ, मेरा बिलीव है क्रिकेट में भी कि we all learn every day. Even we have played cricket for 20 years or whatever years we played and बड़ी बड़ी विकेटें ली होंगी, but every day you learn from these young guys also. Sure. You know, मैंने अभी recently because I was a bowling coach also और coaching भी की, तो so I used to assess these guys. ना बच्चों को मैं देखता था, ये नसीम अशरफ क्या करता है, दानी क्या करता है, what are they doing, what are they good at, and I used to pick things. एक तो एक मेरा अपना फॉर्मूला है कि जिस तरह बॉलिंग करनी चाहिए, एक यूज टू पिक कि उसको क्या सूट करता है, व्हाट ही इज गुड एट। तो उसमें मैंने एक और 2-3 चीज़ें पिक की विच आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर कोई भी बच्चे फास्ट बॉलर है वो देख रहे हैं। गाइस, जब आप बॉल पकड़ते हैं ना, तो हम सब ये फील करते हैं कि ये जो बाकी ये 2 उंगलियां, ये थोड़ा सा करीब लेकर ना, जूम इन करना, जूम इन थोड़ा कैमरा जूम इन कीजिएगा। ये 2 जी, हमारा बिलीव होता है कि ये जो 2 उंगलियां ना, ये 2 उंगलियां और ये थंब, यही सिर्फ बॉलिंग के लिए काम आता है। आई प्रॉमिस यू नॉट। ये जो आपकी फिंगर है, दैट हैज गॉट अ बिग थिंग टू डू विद इट, बिग थिंग, बहुत ही इसका फायदा है। व्हाट हैपेंस इज यू सपोर्ट विद दिस फिंगर। ट्राई दिस यंगस्टर्स, जो अगर आप देख रहे हो, तो आप जब बॉलिंग करोगे नेट्स में, ट्राई जरूर करना, इट माइट वर्क फॉर यू, बट डोंट गिव अप कि ये 1 दिन में 2 दिन में। ये जो उंगली है ना, ये मेक श्योर यू गिव द सपोर्ट to the ball with it. Don't totally go. Some bowlers do that. Some great bowlers do that. कि बिल्कुल यहाँ पकड़ते हैं. West Indians do that, but उनके हाथ भी तो 1.5 फुट का आता है ना. हमारे हाथ क्योंकि छोटे हैं, तो always support with this finger. When you support with this finger, the complete ball is in your control. Okay. If you go like this, sometimes what happens is you sort of wobbles हो जाता है. But if you have this finger on the side and you release it like that, it's got अमेजिंग। अभी नसीम शाह को रिसेंटली मैंने ये 1-2 चीज़ें उसको यही चीज़ मैं बताई थी, एंड ही इज बॉलिंग ब्यूटीफुली, ही स्टार्टेड स्विंगिंग द बॉल एट पेस, एंड यू नो आई एम रियली लविंग इट। बिल्कुल, क्योंकि मैं स्लोअर वंस हम लोग मोस्टली करते हैं कटर लाइक दिस, या बैक ऑफ द हैंड, या हम इधर साइड से निकालते हैं, या फिर जो हम नकल बॉल टाइप है, या इधर से। मैंने रिसेंटली सीखा है, क्योंकि मैं इमरान खान सीनियर को देख रहा था, जो फास्ट बॉलर हैं, मुल्तान सुल्तान से भी खेलते हैं, पेशावर से भी खेल रहे हैं। उसका स्लोअर वन आजकल बहुत इफेक्टिव है, एंड ही इज़ रियली गेटिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स ऑन दैट, और डिसीव कर रहा है, और एक्शन में कुछ चेंज नहीं है। तो मैंने इमरान से पूछा, मैंने कहा इमरान व्हाट इज़ द डिफरेंस, आई वांट टू लर्न दैट, मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हाथ इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना। उसने मुझे बताया, उसने कहा वहाँ पे जब मैं बॉल करता हूँ तो मेरी जो ये वाली फिंगर है, आई रिलीज द बॉल फ्रॉम दिस फिंगर। Okay. जो अभी वकार भाई जिसका बोल रहे हैं, जी वकार भाई प्रोबेबली बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, बट वो रिलीज के लिए बोल रहे हैं। बट वो कह रहा था कि मैं यहाँ से मैं
मैं यहाँ से बॉल जो है उंगलियां यूज ही नहीं करता ना, वो यूज करते वो कहते हैं ये वाली जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है, दिस वन, वो कह रहा है मैं इसको यूं यूटिलाइज करता हूँ। Okay. उसमें ये क्या होता है कि आपका ना एक्शन चेंज होता है, ना आपकी आर्म स्पीड स्लो होती है, यू जस्ट कम इन, और जब आप इधर से रिलीज करते हैं, इस उंगली से रिलीज करते हैं, Yeah. सो द बॉल जस्ट गोज कम आउट ऑफ द हैंड वेरी स्लो, और बैट्समैन समझ रहा है इट डिप्स एंड dip भी होता है। आजकल ये जो फिंगर की, क्योंकि वकार भाई ने बात की तो मैंने कहा मेंशन कर दूं कि इमरान खान ने ये स्लोअर वन करता है, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस वन बिकॉज इट कैन ऑलवेज, जिसके पास पेस है, ही कैन you can अब do आपकी क्या grip? you can do ये बॉल आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, फखर भाई आपकी ग्रिप इस ये- पे ठीक है जो आप कर रहे हैं। ये बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि आप बॉल मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, इस पे नजर रखिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दोबारा दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, देखते रहिए द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, सी ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की कवरेज जारी है। अभी जो आखिरी मैच हुआ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को बड़ी ही कन्विंसिंग तरीके से जो है वो हराया है, और जो है खतरे की घंटियां बज गई क्योंकि अचानक डेविड वार्नर और पार्टी जो है दे कम टू द पार्टी, दे लुकिंग रियली रियली गुड। श्रीलंका स्टिल अ वेरी गुड साइड, दे स्टिल आर इन देयर विद अ चांस, वील फाइंड आउट हाउ दैट गोज। कल डबल हेडर है, 2 मैचेस हैं, उसके बारे में भी आपसे कुछ लम्हे बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी, और फिर कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इस वक्त आस्क द पवेलियन, हैशटैग आस्क द पवेलियन के सवालात आपके ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू हैशटैग आस्क द पवेलियन के सवाल हमें भेजें। अच्छा, मैं माजर चाहता हूँ, बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे होते हैं, तो अगर एक ही नौयत के मुख्तलिफ सवालात होंगे तो मैं कोई एक जो होगा उसको पिक करके फटाफट अपने पैनल से पूछूंगा। हम अनफॉर्चुनेटली, हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हम हर सवाल का जवाब दें, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पेस को जो है वो ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। अच्छा, ये सवाल जो है ये पूरे पैनल से आया है, और ये सवाल है आमिर मुख्तार का। आमिर मुख्तार कहते हैं, आई एम ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम द इंटायर पैनल, नो डिसरिस्पेक्ट और strong words for Azam Khan, but Azam Khan only played T20 matches and had 6 runs in total. He played no ODI, no test match, and only today he made his first 50 in first class cricket. How did he in the first place end up in the Pakistani squad? Question for all of you. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में T20 क्रिकेट में है। वो चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खुद भी है, तो उनको ये उनके पर्सपेक्टिव से सवाल है। आई थिंक ही मस्ट हैव, for him to bring this is a very important question. So I assume, Misbah, you must give a very serious answer to all those boys who are playing first class cricket and working very, very hard. देखें, बात यह है कि किसी की यहाँ में मुखालफत नहीं है, या कोई पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं है, आज़म खान या शजीद, या इट डजंट मैटर कौन है बंदा और कौन नहीं है। मेरा तो इस पर बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी फील्डिंग को, अपनी फिटनेस को बेहतर करना है और स्टैंडर्ड अपना रेज करना है दुनिया की जैसे दूसरी टीमों का है, तो सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, नीचे भी फर्स्ट क्लास में भी और ऊपर भी। एक सर्टन फिटनेस लेवल जो भी बंदा अचीव करता है उसको खेलनी चाहिए फर्स्ट क्लास में। अच्छा, तो यू मीन के फर्स्ट क्लास में भी जो प्लेयर आते हैं वो भी एक फिटनेस टेस्ट काइंड ऑफ चेक, जो भी एक आपका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक। बिल्कुल, एंड आई ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दैट, बट फॉर समहाउ डोमेस्टिक लेवल पे वो चीज़ें नहीं हुई। होता क्या है, फिर वो लड़के खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर प्रेशर बिल्ड होता है, देन दे जस्ट नॉर्मली कम इन द साइड, और वहाँ पे आके जब वो कैच छोड़ते हैं या उनसे वो जो उनकी फिटनेस वो नहीं होती, तो सारा जो ब्लेम है उस टाइम जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो फील्डिंग कोच होता है, ट्रेनर, उन पे पड़ता है। नहीं, बट आई सपोज नाउ अब पीसीबी का ये एक लॉ होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में ये बंदे हर टीम के चेक करेंगे उसकी फिटनेस, उसके लेवल। इफ डजंट मैटर हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, इफ इज फिट इनफ फिजिकली, देन ही कैन मेक इनटू द स्क्वाड। इफ नॉट, फिर यहाँ से एक सिस्टम बनना। देखिए, आजम जब आया टीम में तो क्लियरली we were just told that he is fit enough, his match fitness is there. ठीक है, वो उसका वेट ज़्यादा है, फैट लेवल ज़्यादा, बट
ओवरऑल इन फील्डिंग ही इज ओके, क्लियर किया उसको, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उस टाइम चीफ सेलेक्टर नहीं था, मैं सिर्फ कोच था, बट द स्टोरी वाज डिफरेंट एंड एवरीबॉडी कैन सी आई एम, मतलब किसी एक बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, वो टैलेंटेड है, खेल सकता है क्रिकेट, आई बट थिंक इनका सवाल चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है खुद, और उन्होंने कहा कि गालिबन उन्होंने आज कोई 50 हाफ सेंचुरी स्कोर की है फर्स्ट क्लास में, लेकिन पहली दफा वो गालिबन। जो बात वो- कर रहे हैं ना कि वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला तो वो कैसे टीम है, वो T20 में आया है, नहीं तो कह रहे जाहिर T20 है- में भी सिर्फ 6 रन है। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ, एज अ ये कह रहे हैं कि प्लेयर इंटरनेशनल T20 में भी सिर्फ 6 रन है। सर इंटरनेशनल T20 में तो 6 रन है ना, इंटरनेशनल पहले खेल के ठीक है, नहीं, इंटरनेशनल मेरा- खेल के तो सुनिए, नहीं आता ना। एक तो ये कि जो मैं- भी बंदा T20 में आता है, ऑब्वियसली ही वाज प्लेइंग PSL, वहाँ पे डिफरेंट लीग्स खेल रहा था, और दूसरी जो बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे पाकिस्तान का उस नंबर पे प्रॉब्लम चल रहा था, 5-6 पे आपने ऑलमोस्ट सारे परफॉर्मर खिला रहे हैं, उन्होंने perform नहीं आई हैव एक तो 2-3 चीजें मैं इसमें फटाफट ऐड कर दूं बिफोर वहां भी गो टू यू। फर्स्टली मैं ये बात क्लेरिफाई करना चाहता हूं, मैं आजम को खुद जानता हूं, आई हैव प्लेड विद हिम, आई हैव प्लेड अगेंस्ट हिम, आई हैव सीन हिम हिट सम रिमार्केबल सिक्सेस, बड़े हैवी रिस्ट हैं उसके, और तुम्हें मुझे तो मतलब छिक्के कोई भी मार देगा नहीं, ना मुझे भाई। तो नहीं मार सकते, आइएगा आपको मैं किसी दिन ट्राई करूंगा, मैंने नहीं मारे, और दूसरे ने जिन्होंने मारे ने वो, मैं बड़ा परेशान था कि मैं मिड विकेट पे खड़ा था और मैं सिर्फ देखूं कि वो तारे बनाता था बॉल के। Fair enough. He's got a very solid wrist, right? Sure. Very, very solid wrist. But But that's देखो सिंपल एग्जांपल है, सिंपल, इफ यू लुक द पार्ट यू विल गेट द पार्ट। very good point. वहाब जो ये सवाल कर रहे हैं उसके सवाल करने का मकसद ये है कि अगर आज़म खान टीम में आ सकते हैं थोड़ा सा स्कोर करके, इफ़ ही कैन मेक इनटू द I guess, टीम, और अगर उन्होंने भी आज 50 कर लिया है तो वाई ही कांट। यार सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आज़म का कसूर नहीं है, दैट ही वॉज सिलेक्टेड ऑन व्हाट बेसिस, ये तो सिलेक्टर्स ही बता सकते हैं। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पीपल विल आस्क दीज क्वेश्चंस कि अगर परफॉर्मेंसेज नहीं है वाई अ प्लेयर इज इनटू द पाकिस्तान टीम, इसका Right. सवाल जो है जवाब जो है वो सिर्फ सिलेक्टर्स दे सकते हैं। बट येस यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट इट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज टू ऑल द अदर क्रिकेटर्स I एंड think मेकिंग देम अंडरस्टैंड दिस कि यार अगर आपने 150 या 100 कर लिया तो उसके करने पे आप पाकिस्तान टीम में आ सकते हो। ऐसा नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिस तरह मिसबा भाई ने बताया कि 5वें और 6वें नंबर पे प्रॉब्लम थी, सो दे थॉट कि उसको खिला देना चाहिए। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट देयर शुड बी अ प्रोसेस कि जो लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, जिनकी फिटनेस अच्छी है, जो शो करते हैं अपनी कैपेबिलिटी, उनके ऊपर एक जो भी हमारी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए। ये काउंटीज But- में भी तो आई सपोज या इंग्लिश की ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी स्टेट क्रिकेट होती है उसमें भी तो फिटनेस लेवल चेक होते हैं ना। एग्जैक्टली होने चाहिए। काउंटीज अपना फैट लेवल्स पहले चेक करती I हैं, think 3 पड़ोसी महीने मुल्क पहले में भी कैंप होते शुरू हैं, करती हैं। पड़ोसी मुल्क में भी अब होते हैं जो मेरे अब मोस्ट ऑफ द काउंटी टीम्स दे ट्रैवल टू इंडिया और टू दुबई Yes, टू प्री सीजन ट्रेनिंग। सो आई वुड ओनली आस्क यू कि यार आप परफॉर्म किया, अगर आपने स्कोर किया है या आप स्कोर कर रहे हैं, सो कीप कंटिन्यूइंग दैट। आप अच्छे हो, नजर आओगे, स्कोर करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम इन फ्यूचर। थैंक यू वहाब। मेरा सवाल मिसबा से है कि मिसबा ने स्टार्ट में ये कहा कि ही ट्राइड हिज बेस्ट टू इंडल्ज दैट जो भी सिस्टम कल्चर इनटू जूनियर लेवल, लेकिन प्रॉब्लम हुई। आई थिंक पीपल वांट टू नो कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको सॉल्व करना है ना, वेयर आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल और साफ है कि जो लोग वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, दे थिंक डिफरेंटली। ऑफिशियल्स और प्लेयर्स नहीं, जो वहाँ पे उसको रन कर रहे हैं स्ट्रक्चर, वो डिफरेंटली हैं। वो जब उनसे बात करके ऐसे लगता है कि जैसे वो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं गलत हूँ इस पे। सो दे आर नॉट बेसिकली टेकिंग दैट, दे आर सेइंग एट सर्टेन लेवल्स के न मैच विनर होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट पाना देखो हिलिया ना जावे। सो आई डोंट बिलीव। 3 साल हो गए हमें ये 6 टीमों वाला कॉन्सेप्ट हमारा आया है। जब फिटनेस पॉलिसी, एक पाकिस्तान टीम की फिटनेस पॉलिसी नीचे आपके डोमेस्टिक जो रन कर उनको दी गई है और उनको कहा गया कि भाई हमारे पास जब प्लेयर आए तो इस लेवल पे होना चाहिए। चलो पहले साल अचानक वो आया, ठीक है आप नहीं कर सके। नेक्स्ट ईयर फिर कहा कि जी आप इनको जैसे ही सीज़न ख़त्म हो तो अगली दफ़ा इनको बता देंगे आपके फिटनेस टेस्ट होंगे, कोविड आ गया, ठीक है जी। दूसरे साल भी ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है जी। थर्ड ईयर वी नो
अगेन हमारे पास टाइम था कॉन्ट्रैक्ट्स देने से पहले, डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले, वी शुड हैव जस्ट टोल्ड एवरीबॉडी बिफोर, और सीज़न ख़त्म होते ही, दूसरा सीज़न ख़त्म होते ही हमें बता देना चाहिए था कि भाई नेक्स्ट ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेंगे आप इस स्टैंडर्ड पे होंगे। बट स्टिल आई मीन स्टिल आप देखें कि वो अगर प्लेयर खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, तो आप कभी भी सही नहीं कर सकते, उनको वहीं रोकें, आस्क देम टू गेट फिट फर्स्ट, वरना वो ऐसे ही खेलते रहेंगे, आगे भी आ जाएंगे, टीमें भी आ जाएंगे, और जो भी टीम को चला रहा होगा उस टाइम कोच होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, फिर फील्डिंग कोच पे हम बोलेंगे, फिर ट्रेनर जब वो वहाँ फिट नहीं होंगे, बहुत पीछे होंगे टीम से, ट्रेनर उसको ट्रेनिंग कराएगा तो ट्रेनर बड़ा जालिम है। भाई आप नहीं फिट होंगे तो क्या करेगा? Present lot, not just I don't know much many Pakistani but personally, but you guys do complain a lot. I mean, अगर not Wahab, probably Wahab as well. Not to me, to different people. ये सारे मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। पिछले साल फर्स्ट क्लास से लड़की की कंप्लेन थी जी, कोच अगर कोच अच्छा नहीं कर रहा कि जी कोच हमें स्किल्स नहीं सिखाता, फिटनेस पे लगी रहा है। यू नो दे जस्ट कंप्लेन एवरी दे एक्सक्यूजेस, राइट एक्सक्यूजेस। मेरा वसीम भाई सवाल उन बच्चों से है कि जब आप क्रिकेट शुरू करते हो, मैंने भी शुरू की थी, आपने की थी, वहाब ने भी शुरू, मेरा उनसे सवाल ये है उन बच्चों से, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल पूछा ना मिसबा से कि मिसबा नीचे क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम्स है, एंड ही एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली कि देयर आर पीपल हु जिससे कि जैसे नहीं स्किल पे ले जाओ, दफ़ा करो फिटनेस, ये वो बला। इसी तरह मेरा सवाल उन बच्चों से भी है और जो यंगस्टर्स आगे आने वाले हैं कि गाइस जब आप अंडर 16 या अंडर 17 या अंडर 19 आप खेल रहे हो तो अपनी रीजन की तरफ से, विहाड़ी की तरफ से, बूरे वाला, शेखुपुरा, छोटे शहरों की तरफ से खेलते रहे, कभी आप ये सोचते हो कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा इससे? आप खेलते हो किस लिए? आप खेलते हो प्यार के लिए। आई वॉज क्रेजी अबाउट दिस गेम। मैं दोपहर को 1:30-2 बजे उठ के सख्त जून जुलाई की धूप में भागता था, एंड आई डिड इट टिल द टाइम, नॉट टिल द टाइम आई प्लेड फॉर पाकिस्तान, आई डिड इट ऑल माई कैरियर व्हेन आई वाज प्लेइंग। ठीक है ना? तो हमारे थोड़ा इशू ये है जो आपने बात की ना वसीम भाई, कि हमारे रोन लग पैंदे जिन्होंने क्राइम बेबीज हो जाते हैं, जिसको हमें ये करा दिया ज्यादा, वो करा दिया। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल को लेनी पड़ेगी अगर आपने ग्रेट क्रिकेटर्स बनना। ये आपके सामने बैठे हैं वसीम भाई, इनको तो नहीं किसी ने करवाई है ट्रेनिंग। वी नेवर हैड अ ट्रेनर, वी नेवर हैड अ ट्रेनर। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग विद दिस। So जब आप क्रिकेट शुरू करते हो, यू स्टार्ट क्रिकेट फॉर द लव ऑफ द गेम, नॉट कि जी मैं कल इससे मैं फलानी गाड़ी खरीद लूंगा, मैं फलाना प्लाजा खरीद लूंगा, या मैं फलाना प्लॉट खरीद लूंगा, या फलानी चीजें। यू डोंट डू दैट देन। हमें नहीं था पता यार, इवन मिड 30s तक नहीं था पता ये क्या चीजें होती हैं। वर्ल्ड हैव चेंज्ड एनीवे। एक चीज और मैं इस पे इम्पोर्टेंट जो वो वकार भाई ने बात की ना कि क्यों नहीं हुआ, अनदर थिंग विच ऑलवेज बीन डिस्कस्ड जो प्लेयर्स के अंदर और जो मैनेजमेंट के लोगों के अंदर, कि भाई उनको फैसिलिटीज़ वो देंगे तो हम उनका फिटनेस टेस्ट या उनसे हम ये चीज़ें मांगेंगे। भाई आप बाकी चीज़ें भी तो नहीं देते ना, आप गाड़ी भी नहीं देते, घर भी नहीं देते, अब बाकी सारी चीज़ें तो नहीं देते ना उनको। मतलब आप क्या, आपने ग्राउंड में जाके दौड़ना है, यो टेस्ट है या 1 किलोमीटर टेस्ट है, घड़ी आपके पास है, आपने ग्राउंड में जाना है, आप जाएं, दौड़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़, अगर आपके वेट्स के टेस्ट हैं, भाई एक बेंच चाहिए आपको, एक रॉड चाहिए, थोड़े से वेट्स चाहिए, थोड़े से डंबल्स चाहिए, हर बंदा घर में रख सकता है। एक्सक्यूज़, कोविड हो गया जी, कोविड में खाना नहीं छोड़ा, कोविड में बाकी चीज़ें नहीं छोड़ी, घर में बैठे हैं, तो ये 4 चीज़ें नहीं हम रख सकते। एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स को नुकसान होना है, आपको नुकसान होना। आप दुनिया में आके सबको जितना मर्जी कह दें कि ओ जी मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, ग्राउंड में आपने भागना है, ग्राउंड में आपने खेलना है। वहाँ पे जो लोग पूरी दुनिया में देख रहे होंगे पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, अगर आप कैच पे नहीं पहुंचे, अगर आपसे बॉल नहीं हुआ, कोई ये नहीं सुनेगा कि जी मेरे को तो जिमनी सी। ना 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 ना। अच्छा, यू ब्रिंग अप सच वेरिएबल। वो अभी एक हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था पाकिस्तान आर्मी के साथ, एक रियलिटी शो था जिसमें बहुत मुश्किल टेरेन में से और मुश्किल चैलेंजेस में से टीम्स और पार्टिसिपेंट्स को गुजरना होता है। उसकी फिल्मिंग के दौरान मैं वो आर्मी पीटी स्कूल एबटाबाद के करीब जो है वहाँ पर हम लोग मौजूद थे। मैं 2-3 दिन के लिए वहाँ पर था, तो मैं शाम को वॉक के लिए बाहर निकलता था, तो उसमें आपको पता है हर तरफ ग्राउंड ही ग्राउंड है, ये ब्यूटीफुल।
मैं वहां पर देखा कि एक तो वो है ना जो उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जब Yeah. उनको सबको भगा रहे होते हैं और उनके साथ उनकी ड्रिल्स चल रहे होते हैं, वो शाम को मैं वॉक पे निकलूं तो मैं देखूं 2 अफसर ऑफ यंग ऑफिसर्स, ठीक है, वो कंक्रीट पे सड़क के ऊपर ना फुल स्पीड में ना स्प्रिंट लगाते हुए पहले एक दफा गुजरे, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा गुजरे, तीसरी दफा मैंने उनको कहा, मैंने कहा गाइस ये दिस इज गोइंग टू बी हेवी ऑन योर नीज एंड योर एंकल्स, क्योंकि आप लोग रोड पे रनिंग कर रहे हैं, आप ट्रैक पे जाके करें, इस पे वो करें। उसने भागते हुए आगे से अफसर ने ना, मुझे यंग कप्तान था, उसने मुड़ के कहा, उसने कहा सर वो जब जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त वहां पे सरफेस का नहीं होगा, क्योंकि भागना तो पड़ेगा, हम अपनी फिटनेस पे खुद बिल्कुल, तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स द कमिटमेंट दैट यू हैव, मैं दैट आपको डिटरमिनेशन। recent अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि कराची किंग्स की बात अभी आपको ने बताई थी शुरू में, ये पवेलियन जब शुरू हुआ था कि हम अबू धाबी में थे, बबल में थे, सो यू नो एवरी डे ऑल दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर्स, आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज उन्होंने पता उन्हें क्या करना है, दे यू नो बाबर, आमिर, इमाद, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव बीन देयर, बट ऑल दीज यंग किड्स 19, 18, 17 और 21 3 बजे आ रहे हैं दोपहर को उठ के, 3 बजे दोपहर को, बिकॉज इंटरनेट फ्री है कमरे में, सुबह 6, 8 बजे सोएंगे तो फिर आप ब्रेकफास्ट मिस करोगे। अब मैंने फॉरेन मुल्कों में ऐसा नहीं देखा, उनके लड़के प्रॉपर टाइम से उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाके सोना है या रेस्ट करना है कर लो। और फिर मेरी शिकायत गई हमारे ओनर को कि जी सख्ती कर रहे हैं मैंने उस पर भी पकड़ लिया इन्हें, मैं कहा दोबारा मुझे शिकायत मेरी मिली कि तुसी वापस हो सारे। हालांकि वसीम हमारी भाई- मजबूरी है कि हमें अगर शिकायत करनी है तो आप ही से करनी है, सदर आप देखें वसीम भाई, हालांकि सो मेनी टाइम्स आपके डॉक्टर्स, आपके फिजियोज जो टीम के साथ ट्रेनर हैं, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये जो लेट उठने से नुकसान आपको होता है वो ज़रा सुन लें, जिनको नहीं पता। देखें अगर आप 2 बजे उठ रहे हैं, आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मिस कर दिया, ठीक है, अब ब्रेकफास्ट मिस करने की वजह से आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया, और चाहे आपने रात को खेलना है, शाम को खेलना है, अब आपका जो वो पीक एनर्जी टाइम है सर्कल की वजह से बॉडी का, वो आपका लेट हो गया, आप मैच में मरे हुए हैं, आपको एनर्जी आ ही नहीं रही, क्योंकि वो जो गैप था रात को सोते वक्त डिनर जो आपने किया है, उसके बाद जो ब्रेकफास्ट का गैप था, ब्रेकफास्ट इसीलिए कहते हैं, वो आप बजाय 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे की बजाय वो हो गया 14-16 घंटे का। अब साइकिल चेंज हुआ है, फिर आपकी पूरी बॉडी जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, हर चीज़ आपकी चेंज हो गई है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर आपकी रिकवरी डिफरेंट तरीके से हुई है, टाइम सारा सोने का जोन पूरा वो चेंज हो गया आपका। I think these things you need to understand. So I think very well addressed by all of you. I thank you. Wahab, very good answer to that young first class cricketer, and by all आप लोगों की सबकी feedback भी very nice, very good. कुछ सवालात आ ही जा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये सवाल नहीं है, लेकिन किसी ने मैसेज भेजा है हम सब के लिए, तो मैं पढ़ देता हूँ। इनका बेसिकली ट्विटर हैंडल है Mo1 Taiwan. Mo1 Taiwan कहते हैं, You think we're not watching you online, dear Fakhr? Now we have everything available on the net and through apps. I am in Taiwan watching you. How we can miss these legends? Thank you, ARY, and thank you, Ask the Pavilion. Well, we're so glad that that is happening. एक और सवाल है, और ये थिंक पॉइंट की तरफ से आया है, सॉरी ये शाहरुख खालिद की तरफ से आया है। शाहरुख खालिद ने एक बहुत ही लाइट हार्टेड सवाल है, तो इसका लाइट हार्टेड जवाब देना है सब। Go nuts. तो लाइट हार्टेड सवाल ये है शाहरुख खालिद का कि Ask the Pavilion, a light hearted question, if someone was to resign from the pavilion live on air, who would it most likely be? I would want you to vote on the panel. Probably it's me, because I'm pretty used to resigning. अल्लाह यार आदत लिख दे, ये ले इस पे लिख दे, विकी विकी इस पे लिख दे। ये वसीम नहीं, I think he's honest. हम दोनों ने लिख के जेब में डाला होगा। डाला हुआ नहीं, वो कोई और है। चलें जी। No, I think we should get the voting. Voting? I want to know. Okay, I would be the first. I to might vote be myself. wrong. I'll be the first one to resign. You be the first one, you think? हाँ, जो ये You see, आपने who you think will be? I think probably you. You
इतना सोचा मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा। अच्छा अच्छा वाह, एक टाइम के लिए फील हुआ है जिसका देखा ना, मैं यार नहीं। फिर वाह, अभी ध्यान ना कोई भी बस स्टार्ट चलो जी आगे चलो। अजी मिसबा, who do you think will resign out of all of us first? नहीं क्यों कौन रिजाइन है? करें, क्यों रिजाइन करें? ये तो ये उस No, but we are doing fine. Why would we हम नहीं resign? करेंगे। this is a light-hearted discussion. Yeah, we are. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रिजाइन कोई भी नहीं करेगा। नहीं, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, जाना हो सकता है। छुट्टी पे ये जाएगा कि फिर छुट्टी वापस मांग रहा है। नहीं आएगा। अच्छा मैं देखिए, मैं आपको एक चीज बताएं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी रिजाइन नहीं करेगा। उसकी लेकिन ये वजह ये है सवाल कि यहाँ पर क्योंकि- एक ही चीज होगी, और वो है कि वसीम डंडे मार के हम में से किसी को बाहर निकालेगा यहाँ से, क्योंकि सदर ये है हमारे इस सवाल के पीछे सोच क्या लगती है आपको फखर? हमें भी सवाल करने की इजाजत होनी चाहिए। आप तो अभी भी रोटी को चोची और पानी को बम कहते हैं, इसके पीछे क्या सोच लगती है तो चेक तो करें आप। वकार वाह, वेरी नाइसली डन। ओके, विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक ऑन द पेविलियन, बिकॉज ये थोड़ी सी मामला जो है जरा अजीब कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। मैं हूं फखर आलम, देखते रहिए, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कवरेज। एंड विद मी इन द पेविलियन पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह-उल हक एंड वहाब रियाज। आप लोगों के सवाल आ रहे हैं #AskThePavilion के साथ, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक सवाल जो आया है अंजाला मंसूर का, उन्होंने कहा व्हेन डू यू गाइस स्लीप? We don't. एक्चुअली एटलीस्ट 1 2 3 4 ऑफ अस गेट सम स्लीप। एक वो भाई हैं, वो सुबह 6 बजे जो है निक्कर पहन के चले जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए, और उनका नाम है वकार यूनुस। और मुझे कह रहा है कि साथ चलो, मैं क्या माफी दे दे यार। नहीं, गोल्फ खेल लेंगे जब सिर्फ ये टाइम धमकी नहीं मिलेगा। दे रहेगी, साथ में ये धमकी भी दे देंगे कल मैं जो हूँ पीछे वाले कमरे में मैं पूरा एरिया लूंगा अपना सोने के लिए, कि मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ सुबह Let me पे। tell the viewers कि after this work we do, we there are 2 games. We arrive here at 12:15 Yeah. और 12 तक 1 बजे हम टेलीविजन पे ये होता है कि आपने आधा पौना घंटा पहले आना होता है, प्रेपरेशन, चेंज, ओवर एवर में भी टी कॉफ़ी आपने पीनी है। और उसके बाद जब ये ख़त्म करके हम जाते हैं घर, जब भी पहुंचेंगे आधे पौने घंटे में, तो इट टेक्स अबाउट एन आवर टू वाइंड योर सेल्फ डाउन, बिकॉज आपका एड्रेनलिन रश इतना बड़ा होता है इसके बाद कि स्ट्रेट में नींद भी नहीं आती। इवन मैं 2 बजे भी सोने की, हालांकि मेरा लाइफस्टाइल ये नहीं है लेट सोने का, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं 1:30-2 बजे भी लाइटें बंद करके सोता हूँ, तो इट टेक मी अबाउट 45 मिनट्स टू गो टू स्लीप, एंड दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। Yeah, that is. तो इसीलिए मैं 2-3 घंटे सोता हूँ। That's good enough. तो कितनी नहीं पता लगना है वकार यूनिट डिग गया है, गिर गया है इससे। Leo Anzal, dear Fakhr, you're going to see me soon on television. I'm the leg spinner you played in Islamabad club during last December. Well, good luck. I hope I do. I got to play against Salman Qadir, Usman Qadir's brother. Okay. And fantastic flippers. Googly, I didn't really find it challenging, but the flippers I found them challenging. और मुझे बोल के कह रहा था, मैं डंडे लाऊंगा आपके, डंडे लाऊंगा। मैंने कहा डंडे तो नहीं है ले, but he has a really good flipper. So I'm sure Usman is really super talented as well. आगे चलते हैं, और बहुत सारे आप लोगों के पैगामात आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं। अच्छा, ये एक मैं सवाल, आखिरी सवाल है, थोड़ा सा सीरियस नौयत का सवाल है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ वसीम एंड वकार, स्पेशली आपकी तरफ से आया है। साद यूसुफ ने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज टू वसीम भाई एंड वकार भाई, I want to know which type of action is better for a fast bowler, high arm or slingy. I'm a left arm fast bowler and wanted to be a combination of Wasim bhai and Waqar bhai. So I copied Waqar bhai's action, which I loved. Sir, slingy or It high arm? depends आपका नेचुरल एक्शन क्या है। यू कांट अनलेस अनटिल बचपन से आपने किसी को बताया कि आपने स्लिंगी करना है या हाई आर्म करना है। दे बोथ आर इक्वली यूजफुल। वी हैव सीन मलिंगा, वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड। वो था, उसके यॉर्कर्स दुनिया के बेहतरीन थे। उसका यॉर्कर वाहिद बॉलर था जिसका यॉर्कर डिप करता था बिकॉज ऑफ मे बी स्लिंगी एक्शन। सो आप एक्शन एक सर्टन एज के बाद, मेरा नहीं ख्याल आप इतनी बड़ी चेंज कर सकते हो। Okay. Sayyid Zain का सवाल है, my question to all of you. So this is for all of you. Was there a time when you guys felt lost in life? I was a very passionate player in football and cricket, but eventually stopped playing and studies got harder. Now I am confused where I am. Did you guys face problems and how did you overcome them mentally? I think this is talking about. Well, Misbah, why don't you address this one? बिल्कुल ऐसा ज़िंदगी में होता है आपकी। इट मैटर्स कि आप, वो कहते हैं ना कि गिरने के बाद
मेंटली गिरने के बाद आप उठते कैसे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान कहे कि मैं ज़िंदगी में कभी डाउन नहीं हुआ, मेरे पे प्रेशर नहीं आया, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहाँ मैंने फील किया कि आई एम गॉन। ये होता है, बट आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आप जैसे ही उसमें से थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और ज़िंदगी अगर आप सांस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, तो उठें, उठ के आप फिर उसको फाइट आउट करें उन चीज़ों को। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है जब आप उसको जाके मेहनत करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब तक आपकी सांस चल रही, जब तक आप जिंदा हैं, यू आर देयर, यू हैड अ चांस। आपके हाथ में है आपने अगले दिन क्या करना है, और उसको एंजॉय करना, उस चैलेंज को, उस मुश्किल को एंजॉय करना, उसमें से निकलना है। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। थ्रू आउट आप स्ट्रगल करते हैं एवरी डे। और पढ़ाई जब आप बड़े होते हो, क्या नाम बताया था इनका? मैंने बंद कर दिया। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पे वसीम भाई अपना बताऊंगा एक स्टेज पे, बिकॉज मैंने जब आप मास्टर्स किया, MBA कंप्लीट किया, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई काम करूं मैं कोई। उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था ऑब्वियसली, देन आई हैव टू चूज़ वन, दोनों प्रोफेशंस में से इधर जाना है या इधर जाना है। तो मैंने जो डिसीजन उस टाइम पे किया, मैंने अपने पैशन की वजह से किया कि भाई मैं उस पर अगर जॉब करूँगा, मैनेजमेंट या मार्केटिंग की कोई भी मैं जॉब करूँगा, दैट इज़ नॉट माई पैशन। गो कि मेरे शायद अभी मुझे लगे कि मेरा उसमें फ्यूचर अच्छा है और मुझे अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और जिसको आप कह सकते हैं कि आप सिक्योर थे उसमें। बट हेयर इन क्रिकेट मोर रिस्क था, लेकिन मुझे लगा कि जो मेरा पैशन है मुझे वो पिक करना चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है लगा कि उसके बाद आई वॉज नथिंग एट दैट टाइम। फर्स्ट क्लास भी पहली दफ़ा खेल ली थी, मेहनत की, जो भी है मुश्किलों से गुजरे, बट अल्लाह ने आखिरकार जो है उसमें बड़ा कुछ दे दिया। All right, okay. With that, I think let's take a look at the games that we have tomorrow. Tomorrow is a double-header at the ICC Men's T20 World Cup. पहला मैच जो है वो शारजा से बराह रास्त आएगा आपकी खिदमत में। ये रहा पहला मैच, वेस्ट इंडीज बामुकाबला बांग्लादेश। That's the first game that we have, Sharjah Cricket Stadium. और उसके बाद दूसरा मैच, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट मैच, and that is Afghanistan versus Pakistan at the Ring of Fire, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये दोनों मैचेस कल आपकी खिदमत में बराह रास्त हम लेकर आएंगे। जरा पूल जो है पहला, इसके जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल देते हैं कि हाउ थिंग्स आर इन द पूल। जो कि आज आपने देखा मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड इस पूल में टॉप नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया अब उनके साथ आ गई है 4-4 पॉइंट्स के साथ, दोनों बराबर हैं। बट इंग्लैंड के याद रहे कि नेट रन रेट जो है वो बहुत हाई है। Will that matter? We don't know. Maybe the top two just go into the top two will go into the semi-final. South Africa still in there with a hunt. So is Sri Lanka. Bangladesh and West Indies, they clash tomorrow. It is looking like that this is the end of the road for them. But hey, you never know. This is the T20 cricket. What happens? These tables are known to have flipped on their head. And with that, our broadcast for the evening is now coming to its conclusion. मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वसीम, थैंक यू। मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़खार, थैंक यू। वहाब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अपने सवालात हमारी तरफ रवाना करते रहिए, #AskThePavilion लिखकर, थ्रू ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। माजरत चाहते हैं कि अगर आपके सवाल का जवाब ना दे सकें, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जैसे सवाल दोबारा ना हम रिपीट कर सकें। आपकी खिदमत में कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दोबारा हाजिर होंगे। याद रहे कि कल फुल तैयारी के साथ तैयार होना है, क्योंकि 2 मैचेस हैं। दूसरा मैच शाम का, पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान। मैं हूं फखरे आलम, ये है द पवेलियन और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। मुलाकात होगी कल 1 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।